students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Hardware and Software. Learning outcomes. At the end of this chapter, you will be able to differentiate between hardware and software, define the main parts of the computer, classify the computer parts into input, output and storage devices, learn about the working of all parts of the computer in detail. Warm up. Identify and circle the name of the things you cannot see and touch. Okay. अब उन चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है और सर्कल करना है जिन्हें आप ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं. ओके. Hello. We already know about the basics of computers. Now we will learn about the functions of each part of the computer in detail. देखिए बेसिक जो है कंप्यूटर के उसके बारे में तो आपको पता है और इस चैप्टर में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कंप्यूटर के हर पार्ट को. ओके. Now it's time to learn more about this wonderful machine. Key parts of a computer. We already know that a computer is an electronic device that can do many tasks simultaneously. A computer system has different parts that together make it work. Based on processing, computer parts are divided into two groups. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आप क्लास 1 से पढ़ते आए हैं और ये बहुत सारे टास्क को साइमल्टेनियसली करता है. इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो साथ में मिलकर काम करते हैं. ओके. तो प्रोसेसिंग के बेस्ड पे जो कंप्यूटर पार्ट्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. एक है आपका हार्डवेयर एंड एक है आपका सॉफ्टवेयर. सो हार्डवेयर देखते हैं. व्हाट इज हार्डवेयर? द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर. Hardware refers to all electronic and mechanical parts of the computer system. For the computer, hardware parts are classified as follows: input devices, output devices and storage devices. देखिए कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें टच कर सकते हैं, वो आपके हार्डवेयर होते हैं. ओके. तो हार्डवेयर जो पार्ट्स हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में. A computer always needs a set of instructions to work. It cannot work on its own. The devices through which instructions are fed into the computer system are called input devices. For example, keyboard is used to give instructions to the computer by typing. Other input devices are a mouse, microphone, web camera, light pen and joystick. देखिए आपको पता है कंप्यूटर को हमेशा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है काम करने के लिए. अपने आप से खुद से काम नहीं कर सकता. तो जो डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस. जैसे आपका कीबोर्ड है ना. इसके अलावा आपके बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं. लाइक आपका माउस है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है. राइट. कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस. Data instructions are entered into the computer using its key. There are different layouts of keyboards available like QWERTY, VAST and dvorak. Amongst these layouts, QWERTY is the most commonly used layout. VAST keyboard is mostly used by gamers. तो सबसे कॉमन जो इनपुट डिवाइस है ना आपका वो है आपका कीबोर्ड. तो हम क्या करते हैं डेटा या इंस्ट्रक्शंस को एंटर करते हैं यूजिंग द कीज़. तो डिफरेंट लेआउट्स हैं कीबोर्ड्स के. लाइक QWERTY कीपैड होता है आपका, एक होता है वास्ट WASD, एक होता है आपका dvorak. ओके. तो वैसे तो जो मोस्ट कॉमनली यूज लेआउट है वो है आपका QWERTY एंड जो वास्ट है यानी WASD इसे गेमर्स यूज करते हैं. ओके. A keyboard has different types of keys. These keys are small buttons on the keyboard keys. Some of the important keys are. तो देखिए कीबोर्ड में आपके different type of keys होती हैं. ओके. तो उसमें देखते हैं सबसे पहले आपकी alphabetical keys. A, B, C up to Z are alphabet keys. There are 26 alphabet keys. You know that कि हमारे पास 26 alphabets हैं. तो keys भी हमारे पास 26 alphabet keys है. Numerical keys 0, 1, 2 and so on are numerical keys. There are 10 numerical keys. आपकी न्यूमेरिकल कीज होती हैं 10, 0 से लेके 9 तक. स्पेस बार. दिस की इज यूज्ड टू इंसर्ट स्पेसेस बिटवीन द लेटर्स. इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. आपको वर्ड्स के बीच में स्पेस देना तो उसके लिए हम स्पेस बार की का यूज करते हैं और ये सबसे लंबी आपकी की है कीबोर्ड की. ओके. बैक स्पेस. दिस की इज यूज्ड टू डिलीट एनी कैरेक्टर बिफोर द करेंट पोजीशन ऑफ द कर्सर. आपको कोई भी कैरेक्टर डिलीट करना है ओके तो आप कर सकते हैं, वो भी बिफोर द पोजीशन ऑफ द कर्सर. राइट. नेक्स्ट एरो कीज. दीज कीज आर यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन इन ऑल डायरेक्शंस. देखिए आपने एरो कीज देखी होंगी, 4 आपकी एरो कीज होती हैं. तो इनका हम यूज करते हैं कर्सर पोजीशन को हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए. ओके. डू यू नो सम कीबोर्ड्स आर डिजाइन्ड फॉर थंब यूसेज. On most keyboards, you type using all 4 fingers. There are some keyboards, however, that are designed
specifically for thumb usage known as thumb-sized keyboards. They were popular during the early 2000s. अच्छा देखिए, आपको पता है कि वैसे तो ज़्यादा कीबोर्ड्स में क्या होता है कि हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं, बट कुछ ऐसे कीबोर्ड्स भी हैं जो कि स्पेसिफिकली थंब यूसेज के लिए डिज़ाइन किए गए थे, ओके, जिन्हें थंब साइज कीबोर्ड्स कहा जाता था, थंब का यूज़ करके आप कीज़ को प्रेस करते थे। तो ये अर्ली 2000s में काफ़ी पॉपुलर भी हुए। अगले इनपुट डिवाइस की बात करें तो वह है आपके पास माउस। अ कंप्यूटर माउस इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड विद अ कंप्यूटर. It is a pointing device that can move the cursor to different items on the screen. Mouse has two buttons, the left button and the right button with a scroll wheel. Today, many computers use wireless technology and have no wire. There are two types of mouse named wired and wireless. तो कंप्यूटर आपका कंप्यूटर माउस जो आपका इनपुट डिवाइस है, ओके, पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिससे आप कर्सर को मूव करते हैं स्क्रीन के डिफरेंट आइटम्स में। इसमें आपके दो बटन्स होते हैं, लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक स्क्रोल व्हील होता है, ओके। अब आपके पास दो टाइप्स ऑफ माउसेस होते हैं, एक होता है वायर्ड एंड एक होता है वायरलेस, ओके। ओके स्टूडेंट, देयर इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू जिसका आंसर आपने खुद से करना है। तो चलिए बात करते हैं वायर्ड माउस की। अ वायर्ड माउस इज दैट टाइप ऑफ माउस दैट हैज अ वायर. It is connected to a computer or a laptop directly. The transfer of information takes place through the wire. अच्छा, वायर्ड माउस जैसे इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है, इसके साथ एक वायर होती है और जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ओके। वायरलेस माउस, it does not have any wire, it is not connected directly to any system. The transfer of information takes place in the form of radio signals. अब इसमें कोई वायर नहीं होती है तो ये किसी भी सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। तो जो ट्रांसफर होता है इन्फॉर्मेशन का वो आपके होता है रेडियो सिग्नल्स की फॉर्म में, ओके। ऑप्टिकल माउस, एन ऑप्टिकल माउस यूजेस अ लाइट एमिटिंग डायोड दैट इज एलईडी. मूवमेंट इज डिटेक्टेड बाय सेंसिंग चेंजेस इन रिफ्लेक्टेड लाइट. अब ये जो ऑप्टिकल माउस है वो एलईडी का यूज करता है, तो जो मूवमेंट को डिटेक्ट करता है जो बाय सेंसिंग चेंजेस जो रिफ्लेक्टेड लाइट में होते हैं आपके, ओके। माइक्रोफोन, microphone is an input device that is used to record any sound or voice. It converts sound into an electrical signal. अब ये देखिए, दिस इज योर माइक्रोफोन, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, किसी भी साउंड या वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। ये साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ओके। वेब कैमरा, a webcam is a camera that connects to the computer and captures still pictures or motion videos. तो देखिए आपका वेब कैमरा, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ये क्या करता है, ये कैमरा होता है जो कि कंप्यूटर को कनेक्ट करता है एंड कैप्चर करता है स्टिल पिक्चर्स को या फिर मोशन वीडियोस को, ओके। देयर इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू जिसका आंसर आपने खुद से करना है, ओके। नेक्स्ट, लाइट पेन. अ लाइट पेन इज अ लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ड्रॉ थिंग्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन में आपको कुछ चीज़ें अगर आपको ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम लाइट पेन का यूज़ करते हैं। ये लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस होता है आपका, ओके। स्कैनर, a scanner is an input device that is used to scan any document and print it on paper. We can also save the document on the computer. देखिए पिक्चर आपको जो नज़र आ रही है स्कैनर की है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है जो आपको क्या करता है, इसका हम यूज़ करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए एंड देन प्रिंट इट ऑन कंप्यूटर पेपर, ओके। ये बात की थी हमने इनपुट डिवाइसेस की, अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, ओके। तो सबसे पहले मॉनिटर. अ मॉनिटर इज एन इनपुट डिवाइस दैट शोज द वर्क which we do on a computer. It also displays the results and movement of the mouse pointer on the screen. It is also known as VDU, that is Visual Display Unit. मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, जो भी आप कंप्यूटर में काम करते हैं ना वो हमें स्क्रीन पे नज़र आता है, ओके। तो ये क्या करता है, रिजल्ट को ये डिस्प्ले करता है एंड जो माउस पॉइंटर का जो मूवमेंट होता है वो भी स्क्रीन पे होता है। इसको वीडियो भी कहा जाता है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ओके। Now there are three types of monitors. Number one, CRT, that is cathode ray tube. These monitors are big in size and consume more power. 2, LCD, liquid crystal display. These are the monitors with flat screens which consume less power. 3, LED, light emitting diode. These monitors have a better display. They are thinner and lighter in weight. They consume 40% less power than LCD. अच्छा देखिए, अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर में हम सीआरटी की बात करें तो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में और बहुत ज़्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं। जो एलसीडी होते हैं ये फ्लैट स्क्रीन होते हैं और लेस पावर कंज्यूम करते हैं। और जो आपके एलईडी होते हैं इनका डिस्प्ले काफ़ी बेटर होता है, ये वेट में
वे लाइटर होते हैं, थिनर होते हैं, और ये 40% कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, पावर कंज्यूम करते हैं कंपैरेटिवली एलसीडी. ओके, नेक्स्ट, प्रिंटर. It is a hardware output device that allows a user to print items on paper. Many printers can also work as photocopiers. अच्छा देखिए, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है और ये क्या, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि आइटम्स को प्रिंट करते हैं पेपर में. अब देखिए आपके प्रिंटर भी डिफरेंट टाइप्स के हैं. सबसे पहले देखिए लेजर प्रिंटर्स. Laser printers produce high quality text and graphics to print text and images onto the paper. It uses a focused beam of light. Inkjet printers. These are also called bubble jet printers and print both text documents and high quality colored images, especially photos. These are cost effective as compared to laser printers. अच्छा, लेज़र प्रिंटर जो है वो हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, और अगर टेक्स्ट या इमेजेस को पेपर पे प्रिंट करना है तो ये फोकस बीम ऑफ लाइट का यूज़ करते हैं. इंकजेट जो प्रिंटर्स होते हैं इनको बबल जेट प्रिंटर्स भी कहा जाता है, और ये डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं, और हाई क्वालिटी जो कलर्ड इमेजेस होती हैं ना उनको भी ये प्रिंट करते हैं. ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं अगर हम लेज़र प्रिंटर से इनको कंपेयर करें तो. ओके, प्रोजेक्टर. A projector is an output device that takes images generated by the computer and displays them on a big screen. देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रोजेक्टर. आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा. तो ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है जो कि इमेजेस को लेता है जो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट होती हैं, एंड देन उसको बड़े स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है. ओके, नाउ स्टोरेज डिवाइसेस. हार्ड ड्राइव. It is a storage device and has flat circular plates made of aluminium or glass that can store huge amount of data. हार्ड ड्राइव देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ हार्ड ड्राइव. ये आपका स्टोरेज डिवाइस होता है और ये काफ़ी अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रख सकता है. ओके, DVD. It stands for Digital Versatile Disk. It is used for data storage, recording and play audios and videos. देखिए ये आपका DVD है और इसको यूज़ किया जाता है डेटा स्टोरेज के लिए, ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ प्ले करने के लिए. ओके, पेन ड्राइव. It is also known as USB stick that uses flash memory and can store a lot of data and applications. It is also used to copy and move data from one computer system to another. पेन ड्राइव के बारे में आपको पता है, इसको USB स्टिक भी कहा जाता है. ओके, बहुत सारे डेटा को ये स्टोर करके रख सकता है और इसको यूज़ किया जाता है जब हमें डेटा को कॉपी करना होता है, मूव करना होता है एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे में. ओके, memory card. It is a small chip-like device that stores electronic data. It can also be inserted into a smartphone. देखिए ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये मेमोरी कार्ड की है और आप लोगों ने देखा भी होगा ये आपके स्मार्टफोन में इनको हम इंसर्ट कर सकते हैं. तो ये क्या करते हैं, चिप लाइक डिवाइस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करके रखते हैं. ओके, प्रोसेसिंग डिवाइसेस. CPU. CPU stands for Central Processing Unit. It is also called the brain of the computer as most of the functioning of the computer takes place in this part. It also controls all the other parts of the computer. CPU has 3 parts. CPU जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, ये आपके जो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको कंट्रोल करते हैं. अब CPU जो है इसके भी आपके 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि ALU. This unit is responsible for all the arithmetic and logical operations of the computer. जितने भी arithmetic या logical operations होते हैं उनके लिए ALU responsible होता है. Okay, memory unit. This unit is responsible for storing all the information on the computer. The memory can be volatile or non-volatile. अब MU जो है यानी कि memory unit जो है जितनी भी information होता है कंप्यूटर में उसको store करके रखता है. कंप्यूटर मेमोरी आपकी volatile भी हो सकती है और non-volatile भी, right? Control unit. This unit controls the functioning of all other units such as MU, ALU and devices. तो जैसे कि इसके नाम से सजेस्ट हो रहा है कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, बाकी दूसरी यूनिट्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है. ओके, रिमेंबर इट, द CPU sends signals to control the other parts of the computer almost like how a brain controls a body. तो देखिए जैसे ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है इसी तरह से CPU जो है सिग्नल्स सेंड करता है कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स को कंट्रोल करने के लिए. ओके, Software. Software are the applications stored in the computer that we cannot see and touch. These are the set of instructions, data or programs that enables computer to work. Example of software are MS Excel, MS Word, TextPaint and many more. The software can be of 2 types. अब देखिए
सॉफ्टवेयर आपकी वो एप्लीकेशंस होती हैं जो कंप्यूटर में स्टोर होती है, जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। एक्चुअली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिससे कंप्यूटर को वर्क करने में हेल्प मिलती है। तो आपके सॉफ्टवेयर है जैसे MS एक्सेल है, MS वर्ड है, टक्स पेंट है। ओके, सॉफ्टवेयर अब आपके दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू रन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन टू रन, एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को रन करने के लिए। ओके, और ये बहुत सारी एप्लीकेशंस को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे वो रन करते हैं, जैसे कि है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। An application is a software that fulfills a specific need or perform task. Example, Paint, Excel, games, Word, etc. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपका सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करता है, स्पेसिफिक नीड को फुलफिल करता है या स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पेंट है, एक्सेल है, वर्ड है, राइट, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। Let's recall. A computer system parts are divided into two groups, namely hardware and software. Hardware is the parts of the computer that we can see and touch. Software includes the application of the computer that we cannot touch and see. Hardware is further classified into input, output, and storage devices. Software is classified as system software and application software. Monitor, printer, speaker, and projector are output devices. Keyboard, mouse, microphone, and web camera are input devices. Hard drives, DVDs, and USB drives are storage devices. Students, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। I hope आपको सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच का डिफरेंस पता चला होगा। ओके, एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।